Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today we are going to discuss the rapid control of blood pressure or short-term regulation of blood pressure, whatever you want to call it. We discussed the basic concepts of regulation of blood pressure in the previous lecture. Today, rapid mechanism we are going to discuss. But before that, one hadith from फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सदक़ता लतुत्फिउ गज़ब रब्बि व तदफ़उ मीततस्सू। ये है हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि बेशक सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। लतुत्फिउ गज़ब रब के गज़ब को ठंडा करता है। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का बड़ा बेहतरीन जरिया है। और क्या करता है? वह तदफ़ाउ मीततस्सू, बुरी मौत से बच जाता है। ये देखे ना, हमारे बुजुर्ग और हम भी जिस जरा समझ आ जाए, बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए। तो ये सदका करने वाले को अल्लाह बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। तो अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन की समझ अता फरमाए, बल्कि अमल अता फरमाए। असली बात अमल है, समझ आएगी तो फिर अमल आएगी। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द rapid mechanism of blood pressure control. This diagram we had seen in the previous lecture. Many mechanisms have been mentioned in this diagram. Some are starting within seconds, some may take some minutes, some may take hours, and some may take days to complete. So there are several mechanisms which are, some are very rapid, some may take some time, and some may take more time, long time. So that's why we have divided our lectures on regulation of control of blood pressure into 3-4 lectures. Today we are going to talk about the short-term regulation mechanisms, which are very rapid mechanisms. You can see within seconds, you can see. That is the baroreceptor control system, then the CNS ischemic response, and chemoreceptor control system, maybe some part stress relaxation phenomena, or maybe और rapid के 4 minutes के बाद वो शुरू हो रहा है something, that is the capillary, but very rapidly within seconds शुरू होने वाले. These are the most rapidly acting mechanism, which are very important for this moment to moment adjustment in the blood pressure. When a person is lying and he stands up, there are chances of the fall in the blood pressure because the gravity will pull the blood into the legs. So fall in the blood pressure, venous return may reduce and blood pressure may fall, and this happens in postural hypotension. आपने सुना होगा कि बाद लोगों को उठते बैठते चक्कर आ जाते. So very rapid mechanisms are these are nervous mechanisms we will see. So we are going to talk about rapid mechanisms. So short-term regulation are rapid mechanism. Short-term कहते हुए एक और बात क्लियर होती है. Their control is limited. Short-term rapid, so it is very rapid. But when we say short-term regulation, this something is implied here, that is their control may be short-lived as well. ये भी हम देखेंगे. Their control is short-lived. So short-term regulation of blood pressure or rapid mechanism of regulation. The most important, the black diagram, जो पिछली diagram में फिर जाऊंगा, this one, black diagram, which is starting within maybe fraction of second. 1 second तो इधर आके हुआ है. It is starting less than fraction of second में it is starting, and it has gone to this much feedback gain. This is maximum feedback gain. Very quickly, feedback gain has risen to this very high level. Within, so very rapidly mechanism. आगे फिर जो when chemoreceptor भी rapid है और CNS ischemic response भी is quite rapid. It is 15 seconds अगर लग गए हैं, okay, ठीक है, but it is very rapid.
So rapid mechanism, the most rapid one, and probably the most important in the rapid mechanisms, which is usually involved in the day-to-day and moment-to-moment adjustment of the blood pressure. These are baroreceptor. Chemoreceptor भी काम करेंगे, but ज़्यादा ये important. CNS ischemic response to एक emergency mechanism have to control the blood pressure. So very rapid की बात baroreceptors की बात है. They change the peripheral resistance, heart rate, and stroke volume in response to changes in the blood pressure. Mechanism हम देखेंगे, लेकिन बड़ा काम करते क्या है? If they want to increase the blood pressure, they will increase the peripheral resistance, they will increase the heart rate, they will increase the stroke volume, and etc. ये सारे काम मिल कर दे. Opposite is also true. Baroreceptors are very important buffer for they prevent the increase in the pressure as well as they prevent the fall in the pressure. They are in between. ये ऊपर भी नहीं जाने देते, नीचे भी नहीं जाने देते. या if the blood pressure is reduced, they will increase it, and if the blood pressure rises, they will reduce it. दोनों बातें होगी. तो वो करते क्या है? They change. सिर्फ चेंज की बात, ये ऊपर करना है या नीचे करना है, ये नहीं लिखा हुआ. They change the peripheral resistance, heart rate, stroke volume in response to changes in the blood pressure, so to adjust the blood pressure according to the requirement. Then the second mechanism, rapidly acting mechanism, is chemoreceptor reflexes. There are some chemosensitive cells which are sensitive to carbon dioxide or hydrogen ions or maybe some other chemicals, which sensory receptors sensitive to oxygen, carbon dioxide, hydrogen ion concentration, etc. इनको sensitive है. And if the blood pressure falls, they are mostly involved here. When the blood pressure falls, they will adjust the blood pressure by the fall in the blood pressure may result in the increased pH or may result in increased carbon dioxide tension. How? When the fall in the blood pressure is, blood flow to the tissues will be reduced, so carbon dioxide will be accumulating in the blood and the tissues. Or pH may be decreasing, acidity may be produced, or hypoxia may occur if the blood flow is not proper, so there will be tissue hypoxia, etc. So oxygen or carbon dioxide or pH agar ye zyada hote hain, then these chemoreceptor will respond to correct the blood pressure. हम देखेंगे कैसे correct करते हैं. Then the third कारण हमने देखी थी, the rapid control of mechanism ने शुरू में जो कर देखी हमने, the CNS ischemic response, which I said it is an emergency response. Very, very strong rapid control mechanism, but when the blood pressure falls too low, आमतौर पर छोटे ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन, स्मॉल फ्लक्चुएशन, it is not affected at all. Maybe baroreceptors are affected, or maybe sometimes chemoreceptor may be affected, but this is not affected at all by the small magnitude change in the blood pressure. They will be responding only if the blood pressure falls. CNS ischemic response occurs when the blood pressure falls. ये भी बात, ये तो दोनों को काम करते हैं, बैरोरेसेप्टर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों को बफर करते हैं, और इसको भी मैंने फॉल के साथ रिलेट किया है, और ये तो है ही फॉल के लिए. When blood pressure is too low, below 60, below 50, and maximum response is achieved CNS when the blood pressure is only 20 millimeter of mercury, then this is the emergency case, and these strong impulses are required to increase the blood pressure. So very strong mechanism to elevate the blood pressure, the central nervous ischemic response or CNS ischemic response, ये देखेंगे. That is result from the high carbon dioxide or low pH level in the medulla. ये brain को जब ischemia होता है, नाम बता रहा है, CNS ischemic response, ischemia to the brain because fall in the blood pressure. If the blood pressure is so low that the brain is suffering from deficient blood flow, and that will cause the pH will increase, pH will decrease,
acidity will be produced, or carbon dioxide will be accumulating there because of the low blood flow there. So this will strong effect, strong stimulation for the increase in the blood pressure mechanism. उस mechanism को operate करने के लिए वो आगे हम देखेंगे what is that mechanism देखेंगे. Then there is another one, that is the Cushing reaction or Cushing reaction. It is also CNS ischemic response, इसी तरह का है. This CNS ischemic response is due to fall in the blood pressure resulting into ischemia of the brain. Okay, उसको correct करने के लिए. This is also ischemia of the brain, not due to fall in the blood pressure. Pressure may be normal or may be more than normal. But if the cerebrospinal fluid pressure is very high pressure in the CSF will cause the occlusion of the blood vessel in the brain. ब्रेन में जो ब्लड वेसल गुजर रही हैं थ्रू CSF में जो ब्लड वेसल मौजूद हैं, तो बायर प्रेशर ज्यादा है तो बायर प्रेशर इज 130 और अंदर ब्लड प्रेशर इज 120, they will be occluded. So that will cause ischemia, और ischemia का रिजल्ट तो यही होगा. So that this sort of the CNS ischemic response due to the increased cerebrospinal fluid pressure, this ये cerebrospinal fluid के pressure के increase से जो CNS ischemic response है, that is known as Cushing reaction or Cushing reaction. अब इनको हम अलग अलग, so these are nervous mechanisms. ये हैं सारे nervous mechanism. कुछ और भी हम ऐड करेंगे इसमें, बस बड़े सिस्टम यही हैं. Baroreceptor, as I said, the most rapid or most routinely employed system for the maintenance of blood pressure, moment to moment changes, they are buffered by the baroreceptors. They are actually the receptors क्या होते हैं which are sensitive to some stimulus. इनका stimulus क्या है? Stretch. They are stretch receptors. कहाँ पे मौजूद हैं? Separate type nerve endings in almost all the large blood vessels in the chest and neck region. Chest वाले बड़े blood vessels, aorta, बड़ा vessel तो वही है, और carotid arteries neck में. तो bigger vessel में, ये तो बड़े हमने नाम, बाकी भी bigger vessel में, arteries में. तो हम arterial pressure की बात कर रहे हैं. So when we call blood vessels, we are referring to arteries. यहाँ लिखना चाहिए bigger arteries लिख दिया, because we are discussing the arterial blood pressure control. Venous blood pressure को तो हम नहीं कर discuss. So the arterial blood pressure control. So the bigger arteries, most of the bigger arteries in the thoracic region or in the neck region, they have got these baroreceptor, which are separate type nerve endings present in the wall of the vessels. Nerve endings, wall of the vessel में, they are sensitive to what? Stretch. They are stretch receptor. When there is pressure increases, wall will expand, so they will be stimulated. They are sensitive to this stretch of the wall of the vessel. So these are the most abundant. हाँ है तो वो हर जगह, लेकिन they are most abundant in carotid sinus. कहाँ पे है? डायलेटेशन इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज. जहाँ पे ब्रांच होती है ना कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में देयर इज डायलेटेशन ऑफ डायलेटेड एरिया ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच आर नोन एज कैरोटिड साइनस. इनको कैरोटिड साइनस कहते हैं. इनमें मोस्ट अबंडेंट दीज बैरोरिसेप्टर्स हैं. बाकी भी वेसल में है, ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द वेसल में, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द लार्ज ब्लड वेसल, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट है. और दूसरी जगह भी है एआर्टिक आर्च ऑफ द एआर्टा. इसकी वाल में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद है. बाकी ब्रांचेस में भी हो सकते हैं, बिगर ब्रांचेस में भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में भी हो सकते हैं, लेकिन और जो बिगर वेसल्स चेस्ट नेक रीजन में नजर आते हैं उनमें हो सकते हैं. बट दे आर मोस्ट एबंडेंट इन कैरोटिड साइनस एंड एआर्टिक आर्च. बस इन्हीं दो को हम मेंशन करेंगे और मैकेनिज्म हम इसका देखेंगे ये कैसे काम करते हैं. So they are most abundant in these two areas, carotid sinus and aortic arch. Baroreceptor project to vasomotor center,
cardio-acceleratory center, and cardio-inhibitory center. Yeah, what are these? We discussed the vasomotor center. We discussed the part of the vasomotor center in some previous lecture. हमने बात की हुई है when we were talking about the nervous control of the circulation में जब हमने बात की थी. Vasomotor center located in the medulla, anterior part, posterior part, area C1, area A1, cardio-acceleratory area, cardio-inhibitory area, etc. Sensory area, area A1, A2 हमने बात की हुई थी. So the signals from these, they go to these area, vasomotor center को जाते हैं. तो baroreceptor project का क्या मतलब है? Their impulses go to the vasomotor center, to the vasomotor cardio acceleratory area or cardio inhibitory area. हार्ट रेट को कम करना है, ज्यादा करना है, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाना है या कम करना है, अकॉर्डिंगली दे आर बफर. पहले हमने कहा बफर ब्लड प्रेशर को, इफ ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग दे विल ट्राई टू रिड्यूस इट, इफ द ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग दे विल ट्राई टू इंक्रीज इट. सो द सिग्नल्स विल बी पास्ड ऑन फ्रॉम हियर टू द वेसोमोटर सेंटर. चलो फिलहाल इतना ही बोलने वेसोमोटर सेंटर. What nerves are responsible for this projection? जो हमने लफ्ज प्रोजेक्शन बोल दिया. Carriage of impulses, that is, these are the vagus nerve and glossopharyngeal nerve carry the impulses from the baroreceptors. vagus nerve लेके जाती है aortic arch से और carotid sinus से glossopharyngeal nerve लेके जाती है. आगे हम आ रहे हैं. तो the glossopharyngeal nerve and the vagus nerve are responsible for the carriage of this receptor information to the vasomotor center. Yeah, this diagram. This is arch of the aorta. Arch of the aorta, the aortic baroreceptors are present in the arch of the aorta. Spray type nerve endings. Now, one nerve is branching and there is spray type branching. These branches are spreading in the wall of the arch of the aorta. And there are the baroreceptors as well in the carotid sinuses as well. Herring nerve, carotid sinus, internal यहाँ पे डायलेटेशन दिखानी चाहिए. दिस डायग्राम इज फ्रॉम गाइटन एंड हॉल. यहाँ पे डायलेटेशन दिखानी चाहिए थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में. इंटरनल कैरोटिड देयर इज डायलेटेशन व्हिच इज नोन एज कैरोटिड साइनस. सो देयर इज स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग हियर. इनको फिलहाल छोड़े. कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, यहाँ लिखा हुआ है कैरोटिड साइनस. सो कैरोटिड साइनस यहाँ पे लिखा हुआ. सो देयर आर स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग प्रेजेंट हियर. जहाँ पे ये बाइफर्केशन हो रही है वहां पे कैरोटिड साइनस है. सो दे आर प्रेजेंट इन देयर स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स. कैरोटिड बॉडीज यहाँ नजर आ रही हैं. कैरोटिड बॉडीज हियर. कैरोटिड बॉडीज में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं. वो हम अगले अभी बात करते हैं, ना अगले बात अभी जिक्र आ जाएगी. Carotid bodies में, carotid bodies are also present in the carotid arteries. So these there are chemosensitive cell in the carotid bodies. Baroreceptor के साथ उनका, baroreceptors are simply spray type nerve ending, ऐसे free nerve endings present in the wall of the vessels. So from these nerve endings, these are the vagi, two vagi. This is the left one and this is the right one. They are taking the information to their nuclei. हम देखते हैं इंट्रैक्टर सॉलिटेरियस, आगे हम देखेंगे. So the glossopharyngeal and from this carotid sinuses, both from the chemoreceptors as well as the baroreceptor. चलो दोनों को यहाँ पे हम बोल देते हैं. It is the herring nerve which is the branch of this glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve की branch है. Herring nerve उसको बोले, आप glossopharyngeal बोल रहे हैं. Branch of the glossopharyngeal nerve which will join the glossopharyngeal nerve. So the herring nerve will be carrying the impulses from the carotid sinus baroreceptors as well as chemoreceptor. जो carotid body लिखा हुआ है उनमें chemoreceptors है, information यहाँ से लेके जाती है. There are no chemoreceptors here in the arch of the aorta, इसलिए हम उसको सिर्फ baroreceptor लेके जानी है. Both of the vagi they are carrying, और ये भी दोनों herring nerve they are carrying the impulses to the medulla. Medulla में है the nuclei of these nerves, that is 9th and 10th cranial nerve जिसका नाम हम लेते हैं.
ये भी वही डायग्राम है. These are the so the baroreceptors, glossopharyngeal nerve and vagus nerve are bringing the information to the vasomotor area. Vasomotor area को information is coming. vasomoria ये न्यूक्लिया, ये दरमियान में न्यूक्लिया बता दिया glossopharyngeal nerve का. So the vasomotor area in the medulla में है vasomotor area उससे आ रहा है. And you can see in this diagram, this vasomotor center will be sending the information to this. What is this? These are the preganglionic sympathetic neuron, and it is the sympathetic nervous system, the most important regulator of the circulation. सर्कुलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर सिंपैथेटिक सिस्टम है. पैरासिम्पैथेटिक का रोल है कार्डियो इनहिबिशन में है थोड़ा सा ज्यादा रोल इज हार्ट पर भी और ब्लड वेसल पर भी. इट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम. सो व्हेन द वेसोमोटर सेंटर्स आर स्टिमुलेटेड आर इनहिबिटेड, दोनों बातें हो सकती हैं. वेसोमोटर सेंटर में बी स्टिमुलेटेड और वेसोमोटर सेंटर में बी इनहिबिटेड. सो दैट विल बी कन्वेड टू द ब्लड वेसल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व. सिंपैथेटिक नर्व के जरिए से जाएगा. तो दी वो कहाँ पे लिखा हुआ है, कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. एंड दी एआर्टिक आर्च के बैरोरिसेप्टर्स आर देयर. और ये दोनों इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू फाइनली टू दी वेसोमोटर सेंटर. वेसोमोटर सेंटर एंड वेसोमोटर सेंटर विल एडजस्ट द ब्लड प्रेशर थ्रू द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो वेसोमोटर सेंटर से सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल हो रहा है. वेगस नर्व इज आल्सो कंट्रोल. वेसोमोटर सेंटर का पार्ट तो कार्डियो इनहिबिटरी एरिया भी है. वेगस नर्व को भी कंट्रोल करने वाला है, उसको हम भूलते नहीं है. बट प्राइमरीली इट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम, इसलिए हम बात कर रहे हैं. रिस्पांस ऑफ बैरोरिसेप्टर्स टू प्रेशर्स. अब आए कैसे होता है. व्हेन आर्टीरियल प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, and we are recording the number of impulses from the carotid sinus per second. वापस जाता हूं सारी समझने के लिए, यहाँ पे जाता. कहाँ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. वी आर रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ इम्पल्सेस हेयर. कैरोटिड साइनस में या इनसे जो आ रहे हैं, यहाँ से जो इम्पल्सेस है, हमने इस नर्व को या ग्लासोफ्रेंजियल नर्व को पकड़ा हुआ है. ये आसान है, जो यहाँ से आ रही है. वी आर रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ इम्पल्सेस. कितने इम्पल्सेस पैदा हो रहे हैं विद इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर. नंबर ऑफ इम्पल्सेस वी आर रिकॉर्डिंग विद द प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज. तो उसकी डायग्राम हम देखने लगे हैं. आर्टीरियल प्रेशर, कितने प्रेशर पर नंबर ऑफ इम्पल्सेस पर सेकंड कितने होंगे. नाउ नॉर्मल आप देखें, नॉर्मल प्रेशर इज समवेयर हियर. इट इज 100 millimeter of mercury or 120 millimeter, 110 millimeter of mercury. Arterial pressure 120 millimeter, 110 के लिए mean arterial pressure बोलें तो इसका pressure is the number of impulses are somewhere here. If the pressure falls 80 पे आ गया, impulses have gone to very low level. ये impulses कौन से हैं? The impulses which are being generated from the baroreceptor in the carotid sinus. ये कैरोटिड साइनस के इम्पल्सेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. हेरिंग नर्व से रिकॉर्ड कर रहे हैं. हेरिंग नर्व से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैरोटिड साइनस से विद द ब्लड पे. तो नंबर ऑफ इम्पल्सेस एट 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विल बी समवेयर हियर. एट दिस मिलीमीटर ऑफ मर्करी इट विल बी हियर. एट 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी समवेयर हियर. और बियॉन्ड दैट देयर इज नो फर्दर इंक्रीज. बिलेटो आ गया इन दैट डायग्राम. So this is recording of the number of impulses in the hearing nerve or the number of impulses generated in the baroreceptors in the carotid sinus, aortic sinus, vagus nerve से aortic arch से भी रिकॉर्ड कर लें, यही बात होगी. तो hearing nerve से हमने रिकॉर्ड किया. hearing nerve impulses we are recording. That is no impulse at blood pressure 0 to 50 millimeter of mercury. 0 to 50 millimeter of mercury पे no impulses are there. यहाँ पे शायद 50 millimeter of mercury. यानी उन बैरोरिसेप्टर को पता ही नहीं है अगर प्रेशर इतना कम है तो कोई काम उनमें कोई इंपल्स जनरेट ही नहीं हो रहा. हेरिंग नर्व सोई हुई है. तो नो इंपल्सेस बिटवीन एट 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. उसके बाद वो शुरू होंगे रैपिड रिस्पांस अप टू अबाउट 180 millimeter of mercury. Rapid increase from here
हेयर टू अबाउट 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यहां तक ना, उसके बाद रिस्पांस खत्म हो गया। सो रैपिड रिस्पांस और इंक्रीज बोलते हैं। रिस्पांस क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ इंपल्सेस। रिस्पांस क्या है? नंबर ऑफ इंपल्सेस आर इंक्रीजिंग अप टू अबाउट 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। ये रिस्पांस 180 है ना, 160 180 यहाँ पे कहीं होगा, तो 80 यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। Maximum rate of change is near mean arterial pressure. Mean arterial pressure is here 100 millimeter of mercury. It is 100 millimeter of mercury. और maximum rate of change का क्या मतलब है? 100 millimeter of mercury पे number of impulses are here. अगर 101 105 करते हैं तो नंबर ऑफ इंपल्सेस मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं, जबकि यहां पे देखें नंबर ऑफ इंपल्सेस यहाँ पे 60 है, फर्क करें इतने हैं, और 70 करते करते नंबर ऑफ इंपल्सेस थोड़े से बड़े हैं, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं जा रही। यहाँ पे इट इज वेरी स्टीप, यहाँ पे इंक्लाइंड है, यहाँ पे स्टीप है। इसका मतलब है स्लाइट इंक्रीज इन द मीन आर्टेरियल प्रेशर। 100 से 105 करेंगे वो चीखेंगे। Number of impulses in the baroreceptor will be tremendously increased. So maximum rate of change at the mean arterial pressure, यानी maximum sensitivity उसके mean arterial pressure के अमाउंट है, यानी उससे जरा सा ऊपर जाएंगे वो चीखेंगे, जरा सा नीचे जाएंगे उनकी चीखें डाई आउट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा सो जाएंगी। देखे ना, 100 से आप उसको 90 दरमियान, ये 100 है तो यहाँ पे 90 होगी, 90 पे इंपल्सेस इतने कम हो गए, इतने आप इस पे वर्टिकल एक्सिस पे हम ड्रा कर रहे हैं कि 100 पे इतने इंपल्सेस हैं एंड 90 इसके दरमियान में होगा। अगर यहाँ पे हम लकीर हैं 90 विल बी हेयर, इट विल बी टचिंग हेयर, तो यहाँ से इंपल्सेस हैव गॉन टू दिस लेवल, इतना बड़ा फर्क पड़ गया। तो ट्रेमेंडस रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज नियर द मीन आर्टेरियल प्रेशर, उससे दूर जाएगा तो रेट ऑफ चेंज भी कम होगा, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। क्या मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का? मतलब है दे आर वेरी सेंसिटिव नियर मैक्सिमम द मीन आर्टेरियल प्रेशर। थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे दे विल बी वेरी सेंसिटिव, थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे दे विल बी वेरी सेंसिटिव। So their maximum rate of change is baroreceptor respond more to changing pressure than to stationary pressure। ये एक नई स्टेटमेंट है, ये हम आगे भी देखेंगे। When blood pressure has changed, मेरा ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इफ इट इज इंक्रीजिंग 101 102 103 देन बैरोरेसेप्टर विल बी वेरी सेंसिटिव, उनका मैक्सिमम रिस्पांस होगा। बट इफ माय ब्लड प्रेशर 100 से 110 पे आ गया, नंबर ऑफ इंपल्सेस बढ़ेंगे लेकिन उनका रिस्पांस एट 110 कम हो जाएगा, सो जाएंगे, लेस रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे, लेस सेंसिटिव हो जाएंगे। सो बैरोरेसेप्टर रेस्पॉन्ड मोर टू चेंजिंग प्रेशर, डायनामिक चेंजिंग प्रेशर को दे आर मोर रेस्पॉन्सिव। स्टैटिक प्रेशर को, किसी बंदे का मिसाल के तौर पर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर है ही 110, तो उसके बैरोरेसेप्टर उसी पे सेट हो चुके होंगे, दे आर नॉट रेस्पॉन्ड, वो इसी का जैसे 100 हो उनका नंबर ऑफ इंपल्सेस उतने ही रहेंगे। उसका 110 प्रेशर है फॉर मंथ्स, उसका नंबर ऑफ इंपल्सेस बैरोरेसेप्टर के इतने होंगे जितना मेरा 100 पर है। तो स्टैटिक प्रेशर को वो ज्यादा, चेंजिंग प्रेशर को दे आर मोर रेस्पॉन्सिव। तो नाउ बैरोरेसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, हमने देख लिया दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। चलो हमने पिछले, मैं वापस आता हूं जरा सा फिर देख लें। दे आर स्टिमुलेटेड, नंबर ऑफ इंपल्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग प्रेशर, चेंजिंग प्रेशर में इंक्रीज कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। किसको सेंसिटिव हुए? दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच कब होगी? व्हेन द प्रेशर राइजेस, जब प्रेशर बढ़ता है ओनली देन दे विल स्ट्रेच। जब प्रेशर कम होता है तो स्ट्रेच कम हो जाएगी, उनके नंबर ऑफ इंपल्सेस विल बी रिड्यूस। हम देख रहे हैं ना यार, नंबर ऑफ स्ट्रेच कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, 80 हो गया या 60 हो गया, प्रेशर इज फॉलिंग, तो नंबर ऑफ इंपल्सेस आर रिड्यूसिंग, उनका स्ट्रेच कम हो रहा है। स्ट्रेच कम होने से नंबर ऑफ इंपल्सेस कम हो गया। तो द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ बैरोरेसेप्टर, अगर ये स्टिमुलेट होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, खुद सोचे ना। दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज प्रेशर,
जब वो स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेशन हम बोल रहे हैं ना, व्हेन दे स्टिमुलेट, दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज प्रेशर, तो रिस्पांस क्या होगा? It should be in the, finally it should reduce the blood pressure. So all those events which can reduce the blood pressure with the baroreceptor sympathetic system, वो सारा काम होगा. What is that? Signal to the tractus solitarius. ये कहाँ से जा रहा है? वो हमने डायग्राम में मैंने बोला था, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, वेगस नर्व भी और ग्लासोफ्रेंजियल नर्व में भी जो सिग्नल्स आर गोइंग, मैं अगर आपको देखना चाहे मैं दोबारा दिखा देता हूँ. सॉरी, आगे की ये tractus solitarius, this is the area where the vagus nerve and these are taking ninth nerve. This is tractus solitarius. Glossopharyngeal nerve भी इधर आ रही है और hearing nerve भी इधर आ रही है. So the पहला काम क्या होगा? When they are stimulated, signals will go to the tractus solitarius in medulla. ये दोनों nerves tractus solitarius में जाके सिग्नल लेके जाएंगी. And there will be inhibition of vasomotor center. ये हमने पढ़ा हुआ है. We are discussing vasomotor center. The most important part of the vasomotor center is area C1. Simply saying that inhibition of vasomotor center, we mean inhibition of area C1. ये लिखा हुआ ब्रैकेट. अदरवाइज वेजोमोटर सेंटर तो एज ए होल है, एरिया C1 भी है, एरिया A1 भी है, A2 भी है, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया भी है, कार्डियो एक्सेलरेटरी एरिया भी है, एक्सेट्रा, सेंसरी एरिया भी है, A2. There are all these areas are there. लेकिन primarily I discussed it. Primarily when we say vasomotor center stimulation, it is the stimulation of area C1. When we say inhibition of the vasomotor center, we mean inhibition of the area C1. Now this stimulation was due to increased blood pressure. So what should happen? Area C1 should be inhibited to reduce the blood pressure. So inhibition of the vasomotor center, that means area C1. Area C1 will be inhibited and this will cause, area C1 is sending signals to the spinal cord, preganglionic neurons in the spinal cord. Preganglionic neuron in the spinal cord. So this will cause inhibition of those. इसने करना क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करना है भाई, बढ़ा हुआ था. दिस वाज ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज आवर गोल. तो वो कैसे अचीव होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी इनहिबिटेड, जिसको हमने कहा था वेजोमोटर टोन. दैट वेजोमोटर टोन विल बी ड्रॉन टू सम एक्सटेंट. Normal impulses which are normally going to all the blood vessels, they will be withheld. उनमें से कमी आ जाएगी वेजोमोटर से. So inhibition of the sympathetic system, उसका रिजल्ट क्या होगा? Vasodilatation, because sympathetic system stimulation is vasoconstrictor. और vasoconstrictor area भी यही है. Area C1 is also known as vasoconstrictor area. When it is being inhibited, it will cause vasodilatation. और mechanism ये. Mechanism is area C1 stimulation causes stimulation of the vasomotor center, and inhibition of the area C1 causes the vasodilatation. So vasodilatation will occur. It will cause the reduce the peripheral resistance, decrease force and rate of the contraction of the heart. पहले इसको जरा था, मैंने एक लफ्ज बोल दिया था. वेजोडाइलेटेशन होगी कहां पे होगी? रेजिस्टेंट वेसल्स. देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ द रेजिस्टेंट वेसल. जहां पे मैक्सिमम सप्लाई ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम कहां पे है? दोज रेजिस्टेंट वेसल्स. आर्टेरियोल, मेटाआर्टेरियोल, वहां पे सप्लाई है. आर द मीडियम साइज आर्टरी, वो स्मॉलर आर्टरीज जो है उनमें मैक्सिमम सप्लाई है. When they are dilated, resistance to the blood flow is reduced and PR is reduced, peripheral resistance is reduced, and that will cause decreased blood pressure, because blood pressure is the product of two things. One is peripheral resistance, so peripheral resistance will be reduced, blood pressure will fall. Second को अब देखते हैं. Second is this sympathetic system is also supplying the heart. हार्ट को सप्लाई कर रहा है. उसका इफेक्ट भी हमने पढ़ा हुआ है. सिंपैथेटिक सिस्टम causes increase rate of the contraction of the heart and increase force of the contraction of the heart.
ये दोनों काम करता है। तो जब ये इनहिबिट हो रहा है, देयर विल बी डिक्रीज फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन, डिक्रीज रेट ऑफ द कंट्रैक्शन, फोर्स भी कम हो जाएगी, रेट भी कम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट विल रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, फोर्स भी कम जनरेट हो रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, रेट भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट इज आल्सो रिड्यूस, प्रेफर रेजिस्टेंस इज आल्सो रिड्यूस। दोनों जब कम होंगे, दैट विल रिजल्ट इनटू फॉल इन द ब्लड प्रेशर। सो दिस increased blood pressure has resulted by the stimulation of the baroreceptor. There is fall in the blood pressure. एंड फर्दर एडिशन, थोड़ा सा वेगस नर्व को भी काम करने दो। व्हाट इज दैट? वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और वो हार्ट रेट को कम करेगी। ये ना भी हो, this is the reduced heart rate because of the inhibition of the vasomotor sympathetic system. Sympathetic system inhibit हो रहा है, वो भी काफी है हार्ट रेट को कम करने के लिए। लेकिन वेगस भी अपना रोल प्ले करती है, वेसोमोटर सेंटर में उसका भी सेंटर पार्ट है, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया पे वहां पे मौजूद है। वेगस नर्व विल बी एक्साइटेड एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द हार्ट रेट to some extent, maybe force of the contraction, but not heart rate. Bradycardia ये करती है, it reduces the heart rate. So all this, so effect of stimulation of baroreceptor will be these events. All these events will reduce the blood pressure, decrease heart rate. So vagus nerve stimulation will cause decrease heart rate. यहाँ पे भी decrease heart rate, inhibition of the sympathetic system. All this will all leading to reduction in the blood pressure, क्योंकि दोनों काम हो गए हैं। That is, heart की activity कम होने से cardiac output has been reduced and vessel की dilatation से peripheral resistance has been reduced. So both the determinants of blood pressure are falling, they have reduced, so blood pressure is going to reduce. So हमने equation of the blood pressure is proportional to cardiac output and peripheral resistance. So both cardiac output and peripheral resistance have reduced with the stimulation of the baroreceptor blood pressure. And this is, mind you, this is very quick. Within fraction of second, वो diagram ने हमने देखा था. This happens when the person is standing from lying position. There are chances of fall in the blood pressure, but very quickly, within fraction of the second, all this will happen and blood pressure does not fall. The person doesn't feel any fall in the blood pressure. It is so rapid. So routine homeostasis of blood pressure के लिए ये baroreceptors are important. This is very rapid mechanism. ये डायग्राम डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज इफ द baroreceptors are stimulated by increase in the blood pressure, it will cause the cardio inhibitory area, vagus nerve inhibit होगी, and the cardio acceleratory area will be inhibited. This will be stimulated, vasomotor center will be inhibited, and it will cause the vasodilatation, it will cause decreased activity of the heart, and it will reduce the blood pressure. Or opposite is also true. When the blood pressure falls, baroreceptor will be inhibited. It will cause the inhibition of the vagus nerve and stimulation of the sympathetic system, increase vasoconstriction throughout the body, and heart rate will increase, and this will increase the blood pressure. जो हमने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम में सारा क्लियर है. ये दिस डायग्राम इज नॉट फ्रॉम गाइटन, मे बी इट इज फ्रॉम दिस बुक, मे बी or somewhere from Google's. I have picked up this diagram. So this is all explanation. Both direction, increasing pressure or decreasing pressure. Baroreceptors are important. Increase pressure को, decrease pressure को भी they will respond. There are normal firing rate from the baroreceptor. वो हमने देखा था 80 पे भी there is firing rate. 80 से नीचे आएंगे, there will be reduced firing rate, number of impulses will be reduced. So when the blood pressure is falling, number of impulses are falling, so this response will cause the stimulation of the baroreceptor, stimulation of the sympathetic system, inhibition of the vagus, and the increased activity of the heart and vasoconstriction as blood pressure will be increased. So baroreceptor दोनों तरफ काम करते हैं. They prevent the fall in the pressure and they prevent the rise in the pressure. Rise हो तो इधर ले आते हैं, fall हो तो उधर ले जाते हैं. They are buffer. They are known as the blood pressure buffer.
बैरोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ये बात हमने कर ली। एंड दे चेंज, क्या करते हैं, प्रेफर रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, देख के आगे हमने। एंड दे इंक्रीज द हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। व्हेन फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन इज इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड और अपोजिट, इफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज रिड्यूस, so stroke volume will be reduced. So preferred resistance चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, और इसका रिजल्ट तो ये होगा ना, the blood pressure will change, cardiac output और preferred resistance दोनों चेंज हो रहे हैं, blood pressure will change। अब मैं बोल देता हूँ, if they are all increasing, that is cardiac output increasing, blood pressure PR increasing, blood pressure will rise, और opposite, when blood pressure has fallen, this will reduce, blood pressure will reduce। So that is how this is important. Inhibition of the baroreceptors, ये तो हमने स्टिमुलेशन बात की थी। इनहिबिशन कैसे होगी? When they are not stretched, 100 पे उतने नंबर ऑफ इम्पल्सेस से 90 पे नंबर ऑफ इम्पल्सेस will be tremendously reduced। वो स्ट्रेच, वो भी जो था वो भी खत्म हो रहा है। 80 पे और कम हो जाएंगे, 50 पे खत्म हो जाएंगे। So that is effect is opposite to what we have observed on the stimulation. What is that? ये आप देख ले। This is normal arterial pressure. नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर है कितना? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहां पे हमने किया एक्सपेरिमेंटल एनिमल में किया क्या है? बोथ कॉमन कैरोटिड आर क्लैम्प्स, कॉमन कैरोटिड आर्टरी को हमने क्लैंप कर दिया। क्या मतलब? कैरोटिड साइनस में ब्लड जा ही नहीं रहा। जब कैरोटिड साइनस में ब्लड जा ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? स्ट्रेच विल बी गॉन। So what will happen? Blood pressure will rise. क्यों? Big when there is blood pressure, वो तो ये फील करेंगे कि blood pressure has fallen, बहुत कम हो गया, स्ट्रेच खत्म हो गया। स्ट्रेच का खत्म होना इज स्टिमुलेशन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर। हमने मेन जो डायग्राम देखिएगी, मैं फिर वापस चला जाता हूं आपके समझाने के लिए, सॉरी। हमने देखा क्या था? स्ट्रेच, ये हमने देखा ये था। Such stimulation of the baroreceptor causes all that, and this reduces the blood pressure. Or again, if it is opposite, when there is no stretch in the carotid sinus, all this will be reversed. That is, signal to the tractus arterius will not be going. Inhibition of the vasomotor center, stimulation of the vasomotor center will occur. Stimulation of the sympathetic system will occur. Vasoconstriction will occur, and increase heart rate and increase force of the contraction will occur, and the result will be increased blood pressure. आप carotid sinus से नीचे नीचे carotid को आप clamp कर दें, कैरोटिड साइनस को तो ये पता चलेगा ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, तो दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये डायग्राम हमें ये दिखा रही है। व्हेन यू क्लैंप द कैरोटिड साइनस हेयर, आपने कैरोटिड साइनस को यहाँ पे क्लैंप किया, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल्स गोइंग फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर टू द वेजोमोटर सेंटर विल बी स्टिमुलेटेड, एंड स्टिमुलेशन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर मीन स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम टू ब्लड वेसल, इंक्रीजिंग peripheral resistance, stimulation of the sympathetic system to heart, increasing the force of the contraction, rate of the contraction, increasing the cardiac output. So both peripheral resistance and cardiac output will increase, and that will blood pressure has gone to 150. It will remain as long as the carotid sinus are clamped, और जब वो carotid sinus को clamp रोकेंगे तो opposite will happen. Again the blood pressure will return to the again normal level. So that is the importance of blood baroreceptors. Baroreceptors protect against the short-term change in the blood pressure. यही तो हमने elaborate किया है. Short-term change in the blood pressure को से protect. ज़्यादा भी हो तो उसको रोकते हैं, कम होने को भी रोकते हैं. And for example, standing up very quickly, जैसे मैंने कहा कि लेटे हुए थे, अचानक खड़े हो तो blood pressure गिरना चाहिए, हमारा नहीं गिरता. वो इसलिए नहीं गिरता, बैरोरिसेप्टर्स आ रहे हैं. बूढ़े लोगों में गिरने लग जाता है, वो इसलिए कि बूढ़ा लोग अचानक लेटा हुआ उठा है तो चक्कर आ जाता है उनको. क्यों? ये बैरो रिफ्लेक्स ब्लंट हो जाता है. आगे कहीं पढ़ेंगे हम, बैरोरिसेप्टर्स विल बी ब्लंटेड. मेरा रिसर्च वर्क भी इसी पर है. The elderly people have got the blunted baroreceptor
रिफ्लेक्स, ब्लड प्रेशर गिरता है उनका, बहुत आसानी से गिरता है, खाना खाने के बाद गिर जाता है मिसाल के तौर पर। सो बैरो रिसेप्टर्स यंग लोगों में दे वेरी क्विकली मेंटेन दी ब्लड प्रेशर, उसको लेटे हुए खड़े होने पे ब्लड प्रेशर की फीलिंग नहीं होती, बूढ़े लोगों को होने लगती है, बहुत से बूढ़े लोगों, सबको ना हो लेकिन बहुत से बूढ़े लोगों को होती है। Baroreceptors are ineffective in protecting against the sustained blood pressure changes as they tend to reset at a new normal value. ये मैं पहले अभी कह चुका हूँ आज के लेक्चर में। If a person has got the mean arterial pressure of 110, मेरा 100 है, अगर 110 हो जाए और महीनों तक ये रहे, बैरोरिसेप्टर्स हो जाएंगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। So baroreceptors are ineffective in protecting against sustained rise in the pressure or sustained fall in the blood pressure, दोनों तरफ आप कर ले। सस्टेन्ड राइज को नहीं रिस्पॉन्सिव है, तो अगर ये इतने इफेक्टिव हैं तो क्यों लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है नर्वस, अगर ये इतने इफेक्टिव हैं। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म, इसलिए मैंने कहा कि टर्म को भी याद रखें, इनका इफेक्टिविटी जो है, इसका इफेक्टिवनेस जो है दैट इज फॉर शॉर्ट लिव्ड है। So the baroreceptors are ineffective in protecting against the sustained blood pressure changes as they tend to reset at new normal value. जैसे बाकी रिसेप्टर रीसेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने टॉफी मुंह में डाली है, वो शुरू में बहुत मीठी लगती है, थोड़ी देर बाद मीठी नहीं लगती, क्या उसमें चीनी कम हो गई है? नो, आवर रिसेप्टर्स हैव अडॉप्टेड, रीसेट हो गए नए लेवल पर। पहले तो थोड़ी सी चीनी पे वो चीखने लगते थे, दे आर वेरी सेंसिटिव, लेकिन थोड़ी देर अगर चीनी पड़ी रहे तो मीठी नहीं रहती, कम मीठी हो जाती है। दिस इज रीसेटिंग ऑफ द रिसेप्टर। हर जगह रिसेप्टर अडॉप्ट करते हैं। ऐनक पहनी हुई है, मैंने अभी ऐनक पहनी तो आई कैन फील इट, लेकिन थोड़ी देर बाद आई डोंट फील इट, कपड़े आई डोंट फील इट। ये रीसेटिंग ऑफ द ऑल द, हर जगह रिसेप्टर की अडॉप्टेशन होती है और रीसेटिंग होती है, वो नया नॉर्मल वैल्यूज को समझने लगते हैं। 110 किसी का ब्लड प्रेशर हो गया तो बैरोरिसेप्टर समझते हैं यही नॉर्मल है, दे आर रीसेट टू न्यू नॉर्मल वैल्यू। बैरोरिसेप्टर्स आर दी प्रेशर बफर सिस्टम। बफर सिस्टम का क्या मतलब है? इंक्रीज डिक्रीज दोनों को रोकते हैं। ये डायग्राम दिखा रही है प्रेशर बफर सिस्टम। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ सेवरल डेज, ये 24 आवर्स लिखा हुआ है, देन 24 आवर्स, देन 24 आवर्स। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन सम पर्सन, दिस इज द नॉर्मल रिकॉर्डिंग। ये 3 दिन की रिकॉर्डिंग है प्रोबेबली, यहाँ पे 24 आवर्स है, तो दूसरा दिन यहाँ होगा तो तीसरा यहाँ होगा, मे बी 4 days। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन सम here and somewhere else, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट दिस इज स्टेट मीन आप इसका निकालें तो इट इज 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। थोड़ा सा 100 से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बट दी मीन अगर इसका देखें तो इट इज 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज नॉर्मल। ये बैरोरिसेप्टर्स के साथ है। दिस इज व्हेन द बैरोरिसेप्टर्स आर इंटैक्ट। अब अगली डायग्राम खोलने लगा हूं। That is when the baroreceptors have been blocked. What is that? And those four, इसका बैरोरिसेप्टर ब्लॉक किया, ब्लड प्रेशर कभी यहाँ आ रहा है तो कभी 200 जा रहा है तो कभी नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, डिफरेंट स्टेटस में खड़े होते, बैठते, बातें करते, खांसते, खाना खाते। ये 4 दिन में ब्लड प्रेशर यूं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मीन आर्टियल प्रेशर चाहे उसका मीन अगर निकालें तो मे बी 100 ही हो, लेकिन these fluctuations are there. So baroreceptors are buffer against this sort of fluctuations in the blood pressure. बैरोरिसेप्टर उसको ऐसा रखते हैं। अगर बैरोरिसेप्टर ना हो, मीन तो शायद ठीक रहे ये 4 दिनों में, उसका भी मीन उसका निकालें तो शायद इन सारे प्रेशर का मीन उसका 100 पे ही आएगा, लेकिन आप देख लें ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, कभी 200 के करीब जा रहा है तो कभी 50 से भी नीचे आ रहा है। So this is, baroreceptors are responsible for this function. They are the buffer system, very rapid buffer system for the control of the blood pressure. Normal range के अंदर रखते हैं। You can see normal range कितनी effective control है on the blood pressure. So that's the most rapidly acting mechanism, baroreceptors. अब आ जाए दूसरा mechanism, chemoreceptor. वो कहाँ पे है? वो डायग्राम में हम भी देखे आगे। कीमोरिसेप्टर्स आर
एक पहली बात तो हम पहले पढ़ के आ गए हैं, दे आर सेंसिटिव टू केमिकल चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को और मे बी हाइपोक्सिया को सेंसिटिव है। और कहां पे मौजूद है? दे आर प्रेजेंट, देयर आर सम कीमो सेंसिटिव सेल्स इन कैरोटिड बॉडीज, ये कैरोटिड बॉडीज में है। तो chemosensitive cells are present in carotid bodies and aortic bodies. aorta में भी इसी किस्म की aortic bodies भी मौजूद है। इन जगहों पे there are chemosensitive cells which are sensitive to hypoxia, carbon dioxide and hydrogen ion. ये कब कम होंगे, ये कब ज्यादा होंगे? दे आर सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कब कम होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन कब ज्यादा होंगे। इन दोनों की ज्यादती को सेंसिटिव है और ऑक्सीजन की कमी को सेंसिटिव है। ये तीनों चीजें कब होंगी? कैन यू शुड इमेजिन व्हेन द ब्लड फ्लो टू दीज सेल्स इज रिड्यूस्ड, जब इनको ब्लड फ्लो कम होगा, जब इन कीमोसेंसिटिव सेल्स को ब्लड कम जा रहा होगा, उनके मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन पैदा होंगी। तो दे विल रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो टू दीज कीमोसेंसिटिव सेल्स विल बी रिड्यूस्ड। ऑल दीज कीमोसेंसिटिव सेल्स कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज को छोटी सी आर्टरी सप्लाई करती है। देयर इज अ स्मॉल न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाइंग। इफ द ब्लड प्रेशर फॉल्स in the aorta or carotid sinus, जहां पे ये मौजूद है, if the blood pressure falls, तो मे बी के ब्लड फ्लो इन दैट न्यूट्रिएंट आर्टरी इज रिड्यूस्ड। जब वो रिड्यूस होगा, हाइपोक्सिया विल अकर, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन विल इंक्रीज, दे विल स्टिमुलेट दोस कीमोसेंसिटिव सेल्स, और वो ये हेरिंग नर्व लेके जाएगी इंपल्सेस। So what is that? Small nutrient artery supplies each of these, and fall in the blood pressure reduces the blood flow in the nutrient artery, causes reduction in oxygen, hypoxia, and causes increased carbon dioxide and increased hydrogen ions, and they will excite the vasomotor center. The signals from these chemoreceptor cells, ये अपोजिट है। बैरो रिसेप्टर वाले सिग्नल जाके वेदोमोटर सेंटर को इनहिबिट कर रहे थे। एरिया C1 वाज इनहिबिटेड। यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं कीमो रिसेप्टर से, दे विल स्टिमुलेट द वेदोमोटर सेंटर। ये फर्क है। So the signal excitation of the vasomotor center stimulation will occur, and उसका result तो वही होगा ना, when they are excited, vasomotor center is excited, area C1 is excited, sympathetic system is excited, heart rate increases, cardiac output increases, force of the contraction of the heart increases, there is peripheral resistance increases, and cardiac output and peripheral resistance both increase, they will increase the blood pressure. So they are sensitive to low pressure. जब उनका रिस्पांस होगा लो प्रेशर पे, नो हाई प्रेशर पे उनको कुछ नहीं होगा। दे नो रिस्पांस फ्रॉम द इंक्रीजिंग प्रेशर। बैरो रिसेप्टर दोनों तरफ काम करते हैं, लो को भी रिस्पांस देते हैं, हाई को भी रिस्पांस देते हैं, बट दे आर सेंसिटिव टू लो प्रेशर। जब इतना कम प्रेशर हो जाए कि इनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, हाइड्रोजन आयन की रिमूवल ज्यादा हो जाए, एंड दे विल ट्राई टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय द सेम मैकेनिज्म। तो ऑपरेशन लेवल उनका क्या है? कितना ब्लड प्रेशर कम हो? 80 से कम हो जाए तो। बैरो रिसेप्टर को तो हमने देखा था 100 से 99 हो तो तब भी उनका रिस्पांस होता है, या 100 से 101 भी हो जाए तो दे आर रिस्पांसिव। दे आर नो रिस्पांस बिटवीन 100 and 80। नॉर्मल मेरा ब्लड प्रेशर 100 है, 90 हो जाए तो कोई पता नहीं कीमो रिसेप्टर को, बैरो रिसेप्टर काम करेंगे। They will respond only when the pressure is below 80। यानी कि क्या मतलब है? below 80 होगा, only then the nutrient artery में blood flow कम होगा इसका। So they are responsive, they will respond when the blood pressure is below 80 millimeter of mercury in the air। तो chemoreceptor above 80 उनका कोई रोल नहीं है। ये डायग्राम भी उसी तरह की एक्सप्लेनेशन है, that the chemoreceptors
response when they are stimulated. They will cause respiratory center ko bhi, which is we are not concerned with the respiratory center. We are talking about the blood pressure regulation. So they will cause the cardio-acceleratory center, and cardio-inhibitory center will be inhibited, and vasomotor center will be stimulated. Vasoconstriction will occur, and heart rate will increase, and blood pressure will increase. उसी तरह की बात है. So when blood pressure falls, तो ये काम करें. तो ये दोनों हमने पढ़ लिए. बड़े यही हैं. अभी एक बड़ा जो रहता है वो CNS इस्कीमिक रिस्पांस रहता है. आज का लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे, जितना भी लंबा हो जाए. वो CNS इस्कीमिक रिस्पांस एंड दी कशिंग रिएक्शन या कुशिंग रिएक्शन, जो दोनों एक ही हैं, उसको हम लास्ट डिच स्टैंड, वो सबसे बड़ा पावरफुल है इमरजेंसी में काम होने. उससे पहले कुछ और बातें भी हैं. देयर आर लो प्रेशर रिसेप्टर्स. ये तो हमने हाई प्रेशर रिसेप्टर की बात की थी ना. दे आर सेंसिटिव टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. देयर आर सम लो प्रेशर रिसेप्टर्स एज वेल. वो कहाँ पे हैं? इन द एट्रिया, राइट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम में. राइट एट्रियम में प्रेशर कितना होता है? वी टॉक्ड अबाउट इट. राइट एट्रियल प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर इज 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. राइट एट्रियम की पूरी फिलिंग हो तो प्रेशर उनमें 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा. अब इसके वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में देयर आर रिसेप्टर विच आर नोन एज दी आर. पल्मोनरी आर्टरी में भी मौजूद है. पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना है? 16, 18, 20, 25. सिस्टोलिक प्रेशर उसका 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. मीन आर्टरी प्रेशर 16 के करीब है. तो उनके जो वाल में प्रेशर है वो भी लो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं. कहाँ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और कहाँ 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में भी स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद हैं. दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर लाइक बैरो रिसेप्टर है, तो उसी तरह के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं. दे फंक्शन एट मच लोअर प्रेशर. वहां प्रेशर है ही कम, तो मच लोअर प्रेशर पे वो काम करते हैं. मोर रिस्पॉन्सिव टू वॉल्यूम चेंजेस. अब ये काम हो गया. इसको मैं अगर बताऊं, राइट एट्रियम में प्रेशर इज 0. ज्यादा ब्लड आएगा, प्रेशर में बिकम 1. ओके, कोई ये प्रेशर है. 0 से 1 हो जाना कोई प्रेशर है, या 2 भी हो जाए तो कोई प्रेशर बढ़ा है. एक्चुअली हुआ क्या है? वॉल्यूम बढ़ा है. When more blood is brought into the right atrium, 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से प्रेशर वो that is stretched, इसलिए प्रेशर नहीं बढ़ रहा. काफी हम उसमें ऐड करेंगे, only then 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर will rise. तो एक्चुअली होता क्या है? वॉल्यूम चेंज होता है. दे आर लो प्रेशर रिसेप्टर्स आर एक्चुअली वॉल्यूम रिसेप्टर. प्रेशर को नहीं चेंज, वॉल्यूम को रिस्पॉन्स. वो भी स्ट्रेच ही है ना, वॉल्यूम स्ट्रेच ही हो रहा है ना, स्ट्रेच को रिस्पॉन्स है. तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू वॉल्यूम चेंजेस. प्रेशर को भूल जाए, वॉल्यूम चेंजेस. वैसे इन द ट्रू सेंस जो हमने कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च में जी जो प्रेशर को बोला था, उस प्रेशर को तो सेंसिटिव नहीं थे, वो भी स्ट्रेच को सेंसिटिव थे. वो भी वॉल्यूम था. एक्चुअली वो भी स्ट्रेच हो रहे थे ना, स्ट्रेच को सेंसिटिव है. ये भी स्ट्रेच को सेंसिटिव है. या वहां का स्ट्रेच प्रेशर की वजह से, यहां का स्ट्रेच वॉल्यूम की वजह से. ये फर्क है. तो दीज लो प्रेशर रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू वॉल्यूम चेंजेस. स्ट्रेच इसलिए हो रहा है. whenever there is increased volume, आप इसका सीक्वेंस देख लें. इंक्रीज वॉल्यूम मीन राइट एट्रियम में ज्यादा ब्लड आ, वीनस रिटर्न ज्यादा हो रहा है. दे विल बी स्ट्रेच्ड. they send stimulation of the low pressure receptor. राइट एट्रियम में जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो, एंड दे विल cause excretion of salt and water. ये क्या काम हो गया भाई? अभी तो हम प्रेशर की बात कर रहे थे, ये साल्ट एंड वाटर किधर से ऐड हो गया? एक्चुअली राइट एट्रियल स्ट्रेच, उसका वेदोमोटर सेंटर पे जो इफेक्ट है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. उनका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है राइट एट्रिया जब भी स्ट्रेच होगा, आगे हम कई मैकेनिज्म है, इट विल कॉज मोर लॉस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द यूरिन. हम किडनी में पहुंच गए हैं.
वो ब्रेन को छोड़ के किडनी में पहुंचे हैं। तो ये राइट एट्रियम स्टेच और पल्मोनरी आर्टरी स्टेच, राइट एट्रियम का स्पेशली स्टेच, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ANP, उसको हम कहते हैं, आगे जिक्र आ रहा है उसका, ANP, एट्रियल नेट यूरेटिक पॉलीपेप्टाइड। सो स्टेच ऑफ द राइट एट्रियम कॉजेस मोर एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो रिजल्ट क्या होगा? Salt and water is lost in the urine, blood volume will be reduced। तो वॉल्यूम को ही काम कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंजेस को अपोजिट हम काम कर रहे हैं। तो these low pressure receptors, क्योंकि उनका स्टिमुलस इंक्रीज वॉल्यूम है, so this volume is going to be reduced। So pressure receptors, it will cause more excretion of salt and water in the urine। आगे दोबारा भी आ रहा है, इसको हम वॉल्यूम रिफ्लेक्स भी कहते हैं। वॉल्यूम रिफ्लेक्स है क्या है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ द एट्रिया। ये तो पिछली स्लाइड में हम बात करके आ गए ना। जब भी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो, वीनस रिटर्न ज्यादा हो, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो, मेरा 5 लीटर है, मुझे 1 लीटर की ड्रिप लगा दें, वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, ये होगा फिर दैट इज क्या होगा? दैट इज इंक्रीज रीनल एफरेंट आर्टेरियोलर डायलेटेशन। इस वजह से when the right atrium stretches, they send signals to the kidney, जिसका efferent arteriole, कौन सी है? efferent, A से, E नहीं, efferent arteriole, which is coming to the glomerulus, आने वाली आर्टरी, जाने वाली आर्टरी is efferent, उसका E होता है यहाँ, efferent arteriole, जो किडनी को आर्टरियोल ग्लोमेरुलस बनाने के लिए आ रही है। There will be increased renal efferent arteriolar dilatation that will cause the dilatation। कौन सी चीज? ये stretch of the atria cause the dilatation of the efferent arteriole। क्या रिजल्ट होगा? More blood flow to the kidney। किडनी में ब्लड फ्लो होगा तो that will increase glomerular filtration rate, GFR। That will increase। वो पहला प्रोसेस है यूरिन के फॉर्मेशन में। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 180 लीटर इन 24 आवर्स, 180 लीटर, तो वो बढ़ जाएगा। तो मोर यूरिन फॉर्मेशन, उसको आप डिटेल में और नहीं जाते, किडनी पढ़ेंगे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट है, व्हेन GFR इज इंक्रीज, यूरिनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये दूसरी बुलेट आ गई, मैं फिर मिटा रहा हूं, गौर करें। एट्रियल, ये मैंने रेड लिखा है और बड़ी बुलेट लगाई है। अब ये जो अगली सारी बुलेट आ रही है, इन रेस्पॉन्स टू दिस है, इन रेस्पॉन्स टू दिस ये छोटी बुलेट हमने लगाई। देयर इज रीनल एफरेंट आर्टेरियोलर डायलेटेशन काजिंग मोर GFR, मोर लॉस ऑफ यूरिन। और अगली बात क्या है? दिस इंक्रीज स्ट्रेच काजेस डिक्रीज ADH। कहां से पैदा हो रही है? ADH इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दिस स्ट्रेच send signal to the hypothalamus, causes inhibition of the ADH। हम एंडोक्राइनोलॉजी में कहीं पढ़ेंगे आप, अगर आपने खुद से नहीं पढ़ी हुई तो एंडोक्राइनोलॉजी में इट इज द हाइपोथैलेमस व्हिच विल बी इनहिबिटिंग ADH। ADH को इनहिबिट करेगा, सिग्नल रोक लेगा, तो ADH विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ADH का काम क्या है? ADH causes absorption of water from the kidney tubule। जब ADH नहीं होगी, this absorption will not be there, more loss of water, so it will cause less absorption of water और यूरिन में more loss होगी। ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। एक ये दो बातें हुई अभी। तीसरी बात, atrial stretch will cause the production of, more stretch of the atria causes production of a hormone from the right atrium। हार्ट के चैम्बर की वॉल से हार्मोन पैदा होती है which is known as ANP, atrial natriuretic polypeptide। एट्रियल, एट्रियम से पैदा हो गया, नेट्रियूरेटिक, नेट्रियम is सोडियम, यूरेटिक mean urine, more loss of sodium in the urine, it will cause more loss of water as well, diuresis। So it will cause, this will also cause more loss of water in the urine। This causes more loss of water, this is causing more loss of water, this third one is also causing more loss of water। So volume is being reduced, क्योंकि इसका काम वॉल्यूम है, इसका स्टिमुलस वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। ये जो मैंने 1 लीटर फालतू ब्लड लगा लिया है ना, या ड्रिप लगा लिया, इट हैज टू बी लॉस्ट। तो इसका मैकेनिज्म ही है। all these three will cause more loss of water in the urine। तो रिजल्ट क्या होगा? blood volume will be reduced, तो blood pressure will be also reduced। नेचुरली हम डिस्कस तो ब्लड प्रेशर कर रहे हैं,
लेकिन ये वॉल्यूम की वजह से जो ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है उसको रिवर्स करने का ये तरीका है, वॉल्यूम रिफ्लेक्स। एक सारे को वॉल्यूम रिफ्लेक्स कहते हैं। अभी इसकी एक बात बाकी है, वॉल्यूम रिफ्लेक्स में एक और काम भी होता है, वो अगली स्लाइड में आ जाएगा। ऑल दीज विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ये तो हो गया, इसको सारे को मिलाकर वॉल्यूम रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, इट इज क्लियर। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ये भी वॉल्यूम रिफ्लेक्स का हिस्सा होना चाहिए, वहीं पे एक्सप्लेन हो सकता था, लेकिन ये जरा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने डिफरेंटली हैंडल किया। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, BAIN, इट इज नॉट ब्रेन। हमारे बहुत से स्टूडेंट ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स बोलते रहते हैं। बेन ब्रिज, इट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। वो क्या है? Whenever there is increased blood volume, वही पिछली स्लाइड है, वॉल्यूम रिफ्लेक्स इसलिए मैं कहता हूं। तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम काजेज मोर स्ट्रेच ऑफ द एट्रिया, ये वही बात है, लेकिन अब इसका रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं? इंक्रीज हार्ट रेट। वो तीनों काम तो कर लिए उसने, ये काम भी करता है। देयर इज इंक्रीज हार्ट रेट, और ये इंक्रीज हार्ट रेट दो तरीकों से होता है, एक है डायरेक्ट और एक है नर्वस मैकेनिज्म। डायरेक्ट तो को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ये कि नर्वस मैकेनिज्म होगा तो उसको हम बेन ब्रिज रिफ्लेक्स बोलेंगे। रिफ्लेक्स नर्वस मैकेनिज्म होता है, तो वो कैसे होता है? स्ट्रेच ऑफ द साइनस, स्ट्रेच ऑफ द राइट एट्रियम, कहां पे लिखा हुआ ये? स्ट्रेच ऑफ द राइट एट्रियम काजेस स्ट्रेच ऑफ द SA नोड। SA नोड कहां पे है? राइट एट्रियम में है। जब वो स्ट्रेच होगा तो राइट एट्रियम भी स्ट्रेच होगा। वी हैव डिस्कस द कार्डियोलॉजी, हमने SA नोड का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। जब उसको स्ट्रेच करोगे, नंबर ऑफ फायरिंग, नंबर ऑफ इंपल्सेस जनरेटेड विल बी इंक्रीज्ड, that becomes more permeable to sodium. So stretch of the, so increase firing rate, number of impulses will increase, and that is a heart rate. वही heart rate है। What is heart rate? Number of impulses generated in SA node. SA node जब ज्यादा फायर कर रही होगी, SA node लिखना चाहिए। Stretch of SA node, नोड लिखा होना चाहिए। So more firing rate, more impulses mean heart rate will increase। ये 15% increase है, इस तरीके से 15% increase in the, so this is again heart rate increase। अभी इसको बेन ब्रिज रिफ्लेक्स ना बोलें, अभी एक और नर्वस मैकेनिज्म रहता है। What is that? Nervous reflex, this stretch of the atria sends signals to the brain and it causes stretch receptor in the atrial wall. It causes the efferent glossopharyngeal nerve and the vagus nerve, and it will cause the efferent nerve through the sympathetic nerve, and it will increase the heart rate. ये nervous mechanism है। So stretch also stimulates the nervous mechanism to increase the sympathetic supply to the heart, and there is increased heart rate. This is known as, so all this you may include into Bain bridge reflex, but actually reflex ये वाला part होना चाहिए। So what is Bain bridge reflex? Because of the increased blood volume, heart rate increases. This is known as Bain bridge reflex. So this prevents the damming of the blood in the atria. क्या मतलब है? राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा आना, ये दिस इज मोर वीनस रिटर्न। अगर इसको आगे भेजने का तरीका ना हो तो ये डैम करेगा, पूलिंग ऑफ द ब्लड होगा, यहां पे रुकेगा, पीछे रुकेगा, वीनस साइड पे रुकेगा। ये तो हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया हुआ है ना, कि यहां पे ब्लड अगर ज्यादा आया, अगर आगे पंप ना करें तो ये रुकेगा पीछे। तो राइट एट्रियम में भी प्रेशर पड़ेगा तो सारे वेनस साइड पे, सुपीरियर, इंफीरियर, वेनी केवी और वेन्यूल्स और कैपिलरी तक एडिमा भी हो सकता है। तो बैक पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी। सो दिस वेन ब्रिज रिफ्लेक्स, दिस प्रिवेंट्स द डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द एट्रिया एंड द वेन्स। पीछे ब्लड जमा नहीं होना, जो भी ब्लड आया आगे पुश करो। हार्ट रेट को बढ़ा दिया ना, हार्ट रेट हैज इंक्रीज, तो ये कहां किधर जाएगा? इट विल बी पुश्ड ऑन, तो इट रिड्यूसेस द बेन ब्रिज रिफ्लेक्स को डायग्रामेटिकली ऐसे देख सकते हैं। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, venous return will increase, it will cause the increase venous, increase blood volume will increase the venous return। यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ लिखते। So this will cause the atrial stretch, atrial stretch will cause the feedback medullary cardiac center via the cranial nerves, वो जो हमने 9th glossopharyngeal nerve और vagus nerve की बात की, उनकी stimulation के जरिए से there will be increased sympathetic output to the heart and that will increase the heart rate।
दिस इज वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ये डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे कर दिया। अब आ जाएं वो दो बातें, लंबा हो गया लेक्चर लेकिन दो बातें डिस्कस करके आई वांट टू फिनिश दिस रैपिड कंट्रोल टुडे। CNS इस्कीमिक रिस्पांस, जिसको मैंने कहा था दिस इज द मोस्ट पावरफुल इमरजेंसी मैकेनिज्म टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और होता भी वेरी लो ब्लड प्रेशर पर ही होता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर टू वेरी लो लेवल्स, पहली बात तो यह है कि वेरी लो लेवल बिलो 60 बिलो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बल्कि नियर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ये मैक्सिमम रिस्पांस होता है। लो ब्लड फ्लो टू दी वेजोमोटर सेंटर, ये तो बात है, ब्लड प्रेशर इतना गिर गया कि ब्रेन को सप्लाई कम हो गई है, वेजोमोटर सेंटर को भी सप्लाई कम हो गई है, तो देयर विल बी डिक्रीज सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन टू दी वेजोमोटर सेंटर। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी टू द न्यूरॉन्स इन दी वेजोमोटर सेंटर। ब्लड नहीं जाएगा, कम जाएगा तो वो सफर करेंगे ना, दैट विल बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, और स्टिमुलेशन ऑफ द वेजोकंस्ट्रिक्टर एंड कार्डियो एक्सेलरेटरी एरिया विल अकर। यहाँ पे कार्डियो एक्सेलरेटरी एरिया स्टिमुलेट होगा, इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल अकर। इसको और डिटेल में नहीं जाते, इतनी आइडिया आपको हो गया कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन means increasing blood pressure by all those mechanisms. So stimulation of the vasoconstrictor and the cardioaxillary area in the vasomotor center, strong excitation, strongest excitation बोलें जी, strong नहीं, strongest excitation of the vasomotor center may occur in this, and this will increase the blood pressure as high as required to relieve ischemia. ब्रेन का इस्कीमिया रिलीव करना है, इतना ब्लड प्रेशर राइज होना चाहिए। अगर ये बचा ले तो बचा ले। दिस इज दी लास्ट डिच स्टैंड ऑफ द ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस। अगर ये ना बचा सके डेथ विल अकर। दिस इज दी आखिरी मोर्चा है ब्लड प्रेशर का। So increase blood pressure as high required to relieve the ischemia of the brain. Maximum effort of the system will occur, and carbon dioxide due to ischemia is the main stimulus. ये कहाँ पे क्यों हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन भी, कार्बन डाइऑक्साइड is responsible for this intense stimulation. तो ये होगा CNS ischemic response. लैक्टिक एसिड एंड अदर मेटाबोलाइट्स वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा रोल है इसका। CNS ischemic response is the most powerful, ये बात कर चुके हैं, डायग्राम में भी देख चुके हैं, and vasoconstrictor mechanism for the elevation of the blood pressure, and it may increase the blood pressure up to 250. अगर ये काम करेगा इस तरह भी कर सकता है, 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी within 10 minutes, इतनी तेजी से काम करता है। But intense vasoconstriction will occur throughout the body, और that is also dangerous. किडनी को वेजोकंस्ट्रिक्शन करें तो किडनी बंद हो जाएंगी, जिसको हम कहेंगे रीनल फेलियर हो जाएगा। लिवर को वेजोकंस्ट्रिक्शन करें, लिवर की सप्लाई कम हो जाएगी। So intense vasoconstriction may cause complete occlusion of the some of the peripheral vessels, especially complete anuria, किडनी को बंद किया, may occur due to the almost complete sympathetic vasoconstriction, occlusion of the renal efferent arteriole, वही efferent arteriole सारे इतने बंद हो जाएं, यूरिन बनना ही बंद हो जाए। यही होता है, किसी को इतना ब्लड प्रेशर गिरे ना कि जो ये काम करने पे आ जाए। अगर जल्दी से ठीक हो जाए तो ओके, अगर ज्यादा देर लग गया इस काम में, वेजोकंस्ट्रिक्शन इतनी इंटेंस रही ज्यादा देर तक, रीनल फेलियर विल अकर, वो शाख से निकाल देंगे, वो रीनल फेलियर से मर जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट एन्यूरिया में अकर। इंपॉर्टेंस ऑफ CNS इस्कीमिक रिस्पांस मैं बोल चुका हूं, जल्दी से स्लाइड चला देता हूं। नॉट एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द रूटीन ब्लड प्रेशर, नो, इसका कोई काम नहीं है, रूटीन में कोई काम नहीं है, इमरजेंसी में है जब ब्लड प्रेशर इतना गिर जाए। नो इन्वॉल्वमेंट एट प्रेशर नियर मीन आर्टरियल प्रेशर, कोई काम ही नहीं है, सोया रहता है, कोई काम नहीं करता। एक्टिविटी स्टार्ट एट BP बिलो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 60 से भी कम होगा, 50 से भी कम होगा, और मैक्सिमम मैं बोल चुका हूं बिटवीन 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे मैक्सिमम एफर्ट होती है इसकी। तो ये काम करता है, एंड इट इज एन इमरजेंसी BP कंट्रोल सिस्टम एट वेरी लो ब्लड प्रेशर, इसलिए इसको ये भी कहते हैं लास्ट डिच स्टैंड, आखिरी मोर्चा है ब्लड प्रेशर की कंट्रोल का। ये फेल हो जाए तो पर्सन इज गॉन।
there is no chance of survival. So this is last distance pressure control mechanism. अब आखिरी वाली ये रह गया, ये वही है, ये भी CNS इस्कीमिक रिस्पांस है, लेकिन इसमें ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ। CSF का प्रेशर ज्यादा होने से ब्लड वेसल ऑब्लिटरेट हो गए, ब्रेन का CSF का फ्लूइड का प्रेशर कम हुआ है और काम वही हुआ है, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो टू दिस वेसोमोटर सेंटर हैज बीन रिड्यूस्ड. So Cushing reaction is special type of CNS ischemic response. CNS ischemia not due to fall in the blood pressure, and the ischemia due to the increased cerebrospinal fluid pressure. ये बात हो चुकी, and increased cerebrospinal fluid pressure above arterial pressure. अगर CSF का प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा है, मेरा आर्टीरियल प्रेशर 100 है और CSF का प्रेशर 15 है, तो क्या होगा? ब्लड वेसल विल बी ऑब्लिटरेटेड, बंद हो जाएंगी. तो अक्लूजन ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल विल अकर, और रिजल्ट वही होगा कि वेसोमोटर सेंटर को ब्लड नहीं जा रहा, तो वही होगा CNS ischemic response. So CNS ischemic response will try to elevate the blood pressure above CSF. इतना ब्लड प्रेशर मेरा अगर 105, मेरा ब्लड प्रेशर 100 है ना, अगर CSF का प्रेशर 105 हो गया तो मेरा ब्लड प्रेशर 106 करेगा, ये रिस्पॉन्स above the CSF pressure. So BP is maintained at new equilibrium. अब जब तक मेरा CSF प्रेशर 105 रहेगा, ये 106 रहेगा, ये ज्यादा रहेगा. New equilibrium point slightly higher than the CSF pressure. तो ये हम एक्सपेरिमेंटली भी हम ये कर सकते हैं. ये डॉग में उन्होंने क्या किया है, इस एक्सपेरिमेंट में डॉग में हमने ये प्रेशर बॉटल लगा दी है, यहाँ प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ हम ये रिकॉर्डर लगा दिए आर्टीरियल प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए. जब हम इधर CNS बढ़ाते हैं, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे प्रेशर राइजेस, और जब कम करते हैं तो ये फिर नीचे आ जाता है. तो दैट्स हाउ दिस इज कंट्रोल. स्केलेटल मसल कंट्रक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं रैपिडली. जल्दी जल्दी मैं स्लाइडिंग गुजार देता हूँ. स्केलेटल मसल का भी रोल है, दैट इज द एब्डोमिनल मसल कंप्रेस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ये भी रैपिड मैकेनिज्म है एक किस्म का. बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन एंड कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, इसको ये भी काम करते हैं. स्टिमुलेशन ऑफ द सोमैटिक नर्व थ्रू द एब्डोमिनल मसल, ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट द कंट्रक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल विल कॉज द कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल वेसल्स एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द ब्लड टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न. ये भी ब्लड प्रेशर को तेज करने का एक तरीका है, एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. पीपल हैविंग मसल पैरालिसिस हैव पुअर ब्लड प्रेशर. जिनको मसल पैरालाइज हो ना, उनका ब्लड प्रेशर, ये वाला एलिमेंट खत्म होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल खत्म हो जाता है. एक्सरसाइज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वीनस रिटर्न बढ़ रहा है. एक्सरसाइज ये भी पहले भी कहीं जिक्र कर चुके हैं हम. कंप्रेशन ऑफ द वेन्स थ्रू द बॉडी, जो हमने मसल पंप या वीनस पंप के नाम से डिस्कस किया था, दैट इज. सो द कंप्रेशन ऑफ द वेन थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसलोकेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड रिजर्वायर, वेन से ब्लड ट्रांसलोकेट, देयर विल बी मोर वीनस रिटर्न, देयर विल बी इंक्रीज कार्डिक आउटपुट 5 to 6 टाइम इन सीवियर एक्सरसाइज. हमने बात की 5 लीटर नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है, इट मे गो टू दिस 30 लीटर 5 to 6 टाइम, 25 liter, 35 liter. Blood pressure also increases 130 to 160 millimeter of mercury during exercise. ये normal phenomena. Important to supply more blood. इसका जरूरत क्यों है कि exercising muscle को more supply of nutrition, oxygen चाहिए, उसके लिए pressure चाहिए. Pressure increases, so anticipatory contraction of the muscle also occur. Respiration के साथ भी blood pressure ऊपर नीचे होता है. That is the 4 to 6 millimeter of mercury increase or decrease blood pressure with each respiratory cycle. वो किस तरह होता है? Breathing signal spill over to vasomotor center. हमारा breathing center भी vasomotor center के पास ही पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे तो it spill over to vasomotor center. Inspiration में decrease pressure in thoracic cage causes expansion of the thoracic vessel, decrease venous return and decrease cardiac output. क्या मतलब है? मैं जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ. इंस्पायरेशन क्या है? सांस कैसे लेते हैं? चेस्ट एक्सपेंड्स. जब चेस्ट एक्सपेंड करेगी, द प्रेशर इन द thoracic cage will be reduced. एक्सपेंड करेगी तो प्रेशर इन द चेस्ट विल बी रिड्यूस्ड. तो जो बड़े वेसल जा रहे हैं, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद, दोनों जो जा रहे हैं, तो उनके बाद बाहर से प्रेशर कम होगा तो ब्लड हार्ट को जाना कम हो जाएगा. सो दिस विल एक्सपेंशन ऑफ द thoracic cage will reduce the venous return, will reduce the blood pressure. और
एक्सपायरेशन में अपोजिट होगा। एक्सपायरेशन में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यस, लंबा सांस लेने से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, सांस छोड़ने से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन ऑसिलेशन में भी 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना ज्यादा हो सकता है। मैं अगर सांस लूं ना यूं, दिस मे चेंज माई ब्लड प्रेशर टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इंक्रीज या डिक्रीज में आ सकता है। तो आज का लेक्चर लंबा हो गया, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह, मैं ये ख़त्म करना चाहता था रैपिड कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि आई वांटेड टू शिफ्ट दिस टू द इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, वो ज़रा छोटा होगा इंशाल्लाह। तो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ़ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम प्लीज़ डू आस्क इन माय कमेंट सेक्शन, और शेयर करें, प्लीज़ डू शेयर दिस। देखें, मैंने अपनी मैक्सिमम एफर्ट से, मेहनत से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये मेरा सदका जारिया है। इसको लोगों तक फैलाएं, मुझे भी फायदा होगा, आपका भी सदका जारिया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू मेरे पेज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।